लेकिन चलिए, ये तो बात हुई मार्केट की। अब मैनेजमेंट को भी शामिल कर लेते हैं और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात होगी क्वेस्ट कॉर्प के मैनेजमेंट से। और हमसे खास बातचीत के लिए कंपनी के सीएफओ रवि विश्वनाथ जुड़ेंगे, जिनसे बात होगी नतीजों के साथ साथ कंपनी के बिजनेस वर्टिकल पर। लेकिन सबसे पहले कंपनी के बारे में आपको बता देते हैं। क्वेस्ट कॉर्प की अगर बात करें तो 2007 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। स्टफिंग सर्विसेज मुहैया कराने वाली ये कंपनी है। दुनिया भर में करीब 3000 क्लाइंट्स हैं कंपनी के, और वर्कफोर्स मैनेजमेंट, बैक ऑफिस वर्टिकल में भी ये इनका कारोबार है। और ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, एपीएसी, मिडिल ईस्ट में भी कंपनी की मौजूदगी है। चलिए अब नतीजों पर भी नज़र डाल लेते हैं। और इस बार के नतीजों पर अगर हम बात करें तो आय में तिमाही दर तिमाही इसको हम कंपेयर करेंगे तो करीब 3% ग्रोथ वहां देखी गई। कामकाजी मुनाफा कंपनी का 3% बढ़ा, मुनाफे में 12% की गिरावट हुई, मार्जिन इस बार सपाट ही दिखाई दिए। चलिए अब मैनेजमेंट को भी शामिल कर लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त कंपनी के सीएफओ जुड़ चुके हैं, रवि विश्वनाथ। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश को अपना समय देने के लिए। नतीजों से अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या हाईलाइट्स थे इस बार, इस तिमाही की बात करें, कहाँ से ग्रोथ देखी गई है, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। थैंक यू। अगर हम हाइलाइट्स के बारे में बात करना चाहते हैं तो हमें वी मस्ट एक्चुअली टॉक अबाउट जो ग्रोथ वापस आ रही है पोस्ट कोविड। आई थिंक दैट्स अ हाईलाइट, इफ यू टेक वर्कफोर्स मैनेजमेंट, हमारे जो प्रीमियर प्लेटफॉर्म है, it is coming back to kind of just pre-COVID levels in terms of growth. Demand especially is very, very strong, as we saw entering March. We did have a little softer Q4 because of the COVID fourth wave, the third wave, Omicron wave जो था, उसकी असर जो पड़ी हमारे business पर जनवरी में, that went away by March, and बहुत strong दिख रहा है अभी इस साल के लिए, बहुत अच्छा दिख रहा है। सिंगापुर का जो मार्केट में हमारे जो लीडरशिप पोजीशन है स्टाफिंग बिजनेस में, would that be, even there the job markets are open, Singapore's economy is open, it's looking very strong. IT staffing में भी हमारे जो फोकस है लो मार्जिन मैंडेट से हाई मार्जिन का जो शिफ्ट, वो भी ठीक चल रहा है। And all, virtually the entire workforce management का जो platform है, that's coming back to kind of pre-COVID levels in terms of demand, profitability, and actually growth. So I think we are in a very good spot as far as workforce. And if you take general staffing के बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं तो some of the sectors, manufacturing और industrials में we are seeing a strong pickup. Thanks to ये जो PLI scheme अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने, लोअर टैक्स अनाउंस किया है, ये सब की वजह से the discussions we are having with some of our clients is very encouraging. That is very good. And then again, if you come back to the global technology solutions vertical, that has seen very strong momentum last 2 years. COVID की वजह से टेक की जो business है हमारा पास, that actually has gained a lot of traction, and that will continue. There again, we've seen it's actually broad-based. The growth has been broad-based, and we are the country's largest domestic contact center. The trend we are seeing is the general public are today open to calling a contact center to get their issues resolved. This was not something that we have seen in the past. So that is a good thing. Operating asset management is one segment of ours which is a little subdued. Offices are not open completely, especially ITES industry, Bangalore mein. That will take some time to come back. Education sector, where we do a fair amount of catering services, and it's a high margin business for us. That has come back sporadically last year. But these are the three business segments. I think operating asset management is something that we will focus on, getting it back on track. Workforce management, very strong. Global tech solutions, very strong. And we would be from Q1 carving out emerging business separately. Emerging business mein jo we will be incurring investments into there. And while we don't want to confuse our investors with
by including it with other platforms. So we will be carving that out separately so that they have a clearer understanding of existing business kaise kar raha hai versus emerging business kaisa, how are they performing. So overall, I think business sentiment is absolutely rock solid right now in most businesses. I think, if at all the government goes ahead and implements the labor codes, which have been long pending, it will make it even more stronger for us actually. ऑल राइट, मिस्टर रवि, काफ़ी सारे सवालों के मेरे जवाब आपने दे दिए हैं, बट एक एक करके इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे सर। पहले तो नंबर्स पर ही अगर बात करें तो इस बार हमने देखा कि जो मुनाफा था वहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 12% डिक्लाइन वहाँ पर देखा गया है। ऑफ कोर्स इसके पीछे का रीज़न भी आपने हाईलाइट किया कि कुछ हायर एक्सपेंसेस देखने पड़े हैं, डेप्रिसिएशन कॉस्ट वहाँ पर बड़ा देखने को मिली है। बट गोइंग फॉरवर्ड क्या ये जो चीज़ें थी, ये जो इम्पैक्ट आया, ये वन ऑफ था और आने वाले क्वार्टर में हम यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखें? You will see an improvement going forward quarter on quarter. We had an analyst call a short while ago, and I did allude to the fact that we will definitely see improvement in the profit after tax numbers, the tax provisions, all of these, and even depreciation and amortization will kind of get evened out. So we will definitely see better performance going forward actually. ओके, एक और चीज़ हम देख रहे थे, आपका जो नेट कैश फ्लो है वहाँ पर भी हल्की गिरावट है। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो 225 करोड़ से बढ़कर इस बार 199 करोड़ आए हैं। ये हल्की गिरावट, मार्जिनल गिरावट यहाँ पर देखी गई है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये नंबर भी हम समझना चाहेंगे, इसके पीछे की क्या वजह है? ये जो पिछले साल में हमें करीब 300 करोड़ का टैक्स रिफंड आया था। इस साल में तो सिर्फ 60 करोड़ का रिफंड आया है। इसी की वजह से हमारी जो ये नंबर्स आप बोल रहे हैं, इसमें कुछ ये जो डिफरेंसेस है टैक्स रिफंड्स की वजह से। ओके, ठीक है। लेकिन आपने जो ग्रोथ, यस ओके, लेकिन आपने जो ग्रोथ गाइडेंस दी थी ऑपरेटिंग कैश फ्लो के लिए अराउंड और CAGR 20% की जो गाइडेंस हमें सुनने में आ रही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसको अचीव करने के लिए क्या प्लान्स हैं सर आपके? हमें तो जो भी हम अभी कर रहे हैं उससे वी हैव टू जस्ट कंटिन्यू व्हाट वी आर डूइंग, जो हम कर रहे हैं उसे और थोड़ा जबरदस्ती से करना चाहिए। हमारे जो कलेक्शंस है बहुत मजबूत है आजकल। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग कलेक्शंस वी हैव हैड over the last 8 quarters. The collections have been very, very strong. We will focus on collections. We will focus on quality of services that we render so that customers pay us quickly. And we will be frugal with our capital allocation जो policy है हमारी, that's very, very clear. We don't have any big ticket acquisitions. We don't have any acquisitions in the pipeline. So we are focused on just collections and rendering good quality service. That's how there's no magic stuff that you're going to be doing. Just do whatever we've been doing so far. ओके, वन मोर थिंग ऑन नंबर्स, हमने देखा कि इस बार जो मार्जिन थे वे आपके वो फ्लैट ही थे, 4.9% के आसपास ही मेंटेन रहे। गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन को लेकर आप क्या आउटलुक शेयर करेंगे? क्या इन्हीं लेवल्स के आसपास सस्टेनेबल रहेंगे या फिर यहाँ पर कुछ ग्रोथ देखने को मिल सकती है गोइंग फॉरवर्ड? डेफिनेटली ग्रोथ देखने को, we will grow the margins. That's definitely the plan. We will grow the margins. The rate of growth, जो revenue की जो rate of growth है, the margin growth will definitely be higher than the revenue growth that we have planned. We don't give guidance in terms of specific numbers, so I will refrain from giving any specific guidance. But all I can tell you is the margin growth rate, the percentage will be higher than the revenue growth percentage. That's something that we are always working towards. ऑलराइट, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे थोड़ा डिमांड आउटलुक पर ही, बिकॉज जोग्राफीज़, कुछ और भी जोग्राफीज़ में भी आपकी प्रेजेंस है
और इस वक्त जिस तरीके से रूस यूक्रेन में प्रॉब्लम्स चल रही है, ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके बिजनेस पे नहीं पड़ रहा होगा, बट ओवरसीज़ हम देख रहे हैं कि अट्रिशन के फ्रंट पर आईटी सेक्टर भी इससे इम्पैक्ट हो रहा है और अक्रॉस द जोग्राफी सारे कॉर्पोरेट्स ही इससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो क्या ओवरसीज़ में या फिर इंडिया के कारोबार में ये जो दिक्कतें चल रही हैं, इसका आपके कारोबार पर किसी तरह से कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? नॉट एट ऑल। अभी ये जो यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसकी असर तो हमारे ऊपर आई डोंट थिंक वी हैड एनी इम्पैक्ट एट ऑल, बिकॉज हमारी जो बिजनेस है इट डिपेंड्स ऑन द डोमेस्टिक, ऑन आवर डोमेस्टिक कस्टमर्स, लार्जली डोमेस्टिक एक्चुअली। सिंगापुर में हमारा वी आर वेरी बिग इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में तो यूक्रेन की कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ है, और मिडल ईस्ट इज कमिंग अप एज यू नो द होल जॉब मार्केट इन मिडल ईस्ट इज एक्चुअली becoming very very strong now actually. So that's where we are also seeing a lot of momentum building into our business. इसके अलावा हमारी तो बिजनेस है नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में, उसमें राइट एज ऑफ नाउ वी हैव नॉट सीन एनी काइंड ऑफ सॉफ्टनेस, एटलीस्ट टॉकिंग टू द लीडर्स इन दीज geographies, we don't have any softness in these places right now. So most of our businesses seem to be insulated from the current conflict that's going on in Ukraine right now. ऑलराइट, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और लेबर फोर्स को ही लेकर हम समझना चाह रहे थे कि क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, बट ऑफ कोर्स इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है आपके बिजनेस पर, तो ये अच्छी बात है। और आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।